22-year-old woman has filed complaint with Punjab police accusing Pastor Bajinder Singh of sexually assaulting her as a teenager. The police have booked the pastor, and remember, he is the same one who promises to heal using Christian prayers. He is a curious case of Christian godman. Look at the details, then I come back on the other side with the victim. Kapurthala police has registered a case against Pastor Bajinder Singh. The case is filed on the basis of complaint of his woman disciple. The woman has complained that the pastor sexually assaulted her. ਸਰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। The woman mentioned that she started going to the church in 2017 and got in touch with the pastor since 21. She said the pastor started messaging her and threatened her not to share anything or face dire consequences. 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਮੀਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। The woman alleged that the pastor started following her after college and even touched her inappropriately. ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। This is not the first time the accused pastor has come under police scanner. In 2018, he was arrested by the police for allegedly raping a Zirakpur-based woman. In September 2022, a family had alleged that Bajinder took money from them for treating their daughter, who was suffering from cancer. The Income Tax Department too had conducted raids on his premises in April 2023. A self-styled preacher, he claims to cure fatal diseases, paralysis and other ailments through prayers at his center in Tajpur village of Jalandhar. All right, the victim who made the complaint is with us, and the reason why we are not going out with the identity is because she was minor when all this happened. Very good evening to you. Bajinder Singh is someone who's claimed power of miracles, particularly on serious ailments, even like cancer. And now he stands accused, not the first time of course, of sexual harassment. आप बताएं, आपने ये आज निर्णय क्यों लिया बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? क्या आपके ऊपर अभी तक कोई दबाव था? क्या आपको रोका जा रहा था इस तरह से कंप्लेंट फाइल करने से? सर, ये जो चीजें थी कि इनकी कंटिन्यू धमकियां आना कि अगर आपने ये बात बाहर करी मैं आपको मरवा दूंगा, आपकी फैमिली को मरवा दूंगा, ये सारी चीजें। और सर ये चीजें कंटिन्यू चलती रही। आफ्टर मेरी बेबी होने के बाद जब ये चीजें होनी, फिर इनकी धमकियां आनी शुरू हो गई, तब मैंने एक्शन लिया। क्योंकि सर मेरी छोटी सी बच्ची है, उसको मारने तक के लिए ये आ गए। और इतने सब में आपको पुलिस ने कभी जवाब नहीं दिया? आपने पहले पुलिस को कोशिश नहीं की बोलने की इस बारे में? सर मैंने अगर कदम भी बाहर रखना चाहा तो इन्होंने धमकियां देने की, तुम्हारे फादर बाहर जाते हैं ना, तो तुम क्या चाहती हो कि वो वापस ना आए? सर इतनी ज्यादा कंटिन्यू धमकियां देनी। सर मेरा घर से बाहर तक निकलना इतना ज्यादा वो हो गया था, मैं घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी। मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, मुझे पैनिक अटैक होते थे। सर आपको सुन के हमें लग रहा है किस तकलीफ से आप गए हैं। अब जब आपने कंप्लेंट कर दी है और इसके बाद हो सकता है कि जो NCPCR है, चूँकि ये सब जब हुआ तब आप माइनर थे, वो भी इसमें इसका ध्यान लें और इसके बारे में कुछ करें। आपको लगता है अब आपको जस्टिस मिलेगा?
सर मुझे ये है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि सर अभी भी कंटिन्यू मुझे थ्रेटिंग कॉल्स आती हैं, ये धमकियां आती है कि तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें ऐसे करवा देंगे। क्या ये आपको जब उस समय आपको इस तरह से हरास करते थे, उस समय किसी धर्म का सहारा लेते थे, आपको कन्वर्जन की बात करते थे, क्योंकि ये बहुत जाने माने हैं कन्वर्जन कराने के लिए? नहीं सर, कन्वर्जन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खुद क्रिश्चियनिटी में हूँ। पर ये जब ये चीजें करते थे सर, मैं एक कैबिन में करते थे, वहां पे कोई भी नहीं होता था, तो ये धमकाते थे। अगर मैं ये बात बाहर अगर मैं कुछ करने की भी रिएक्ट करने की कोशिश करती तो अपने पैर से मेरे पैर पे इतना ज्यादा हार्म कर देते थे सर। आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। आपको मैं समझता हूं कि जब ये सब हुआ था वो आपको याद आता है तो बहुत उससे दुख होता है। आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है आपके सरकार को या केंद्र सरकार को कि इसके बारे में क्या करें, क्योंकि ये बहुत ताकतवर इंसान है, अदरवाइज और भी इनके पहले ऐसे केस हुए हैं जिसमें ये छूट गए हैं। सर मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि इस आदमी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सर ये इनके ऊपर पहले भी केसेस हैं सर। और इनका ये है कि जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो तो मेरी पॉकेट में, वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही फ्री घूमूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। सर ये इनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इनको अरेस्ट करना चाहिए, मेरी यही है, क्योंकि सर ये नहीं तो मुझे, मेरी फैमिली को मरवा देंगे सर। हम आशा करते हैं कि पुलिस जहां आपने कंप्लेंट करी है और पंजाब की सरकार इस बात को देख रही है और जिस तरह का डर के बारे में आप बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और जल्द से जल्द इस केस में इन्वेस्टिगेशन करके आपको न्याय दिलाएं। आपको ऐसे लोग फिर से किसी को डरा ना पाएं, तो आपको और लोगों को वार्न करना है कि इनके झांसे में ना आए, इनके कहलावे में ना आए, इनके इस तरह की परिस्थिति में ऐसे लोगों के ना फंसे जहां ये उनका शोषण कर सके, उनको एक्सप्लॉइट कर सके। सर यही है कि अगर ऐसा उनके साथ ये स्टार्टिंग भी है, किसी लड़की के साथ कोई ऐसी स्टार्टिंग भी हुई है, तो वो फटाफट ये इस चीज पे एक्शन ले, क्योंकि सर आगे चल के ये चीजें बहुत ज्यादा भयानक हो जाती हैं सर।